Hello and welcome, dear students. In ancient India, we have done with this starting of the chapter, the first part of this chapter, and we saw the understanding of the law. Why law is so important. Now we will start from here. In ancient India, there was innumerable and often overlapping local laws. Different communities enjoyed different degrees of autonomy in administering these laws. Among there, some of the cases is the punishment of the two persons received the same kind and varied depending on. So this is the law, the India government that we have today. Now this law has been practiced since the time of the history. Now different parties have different types of law, different society, different regional or religion group have different types of society. For lower caste, upper caste, different laws they used to have. So to make it equal, the law of Indian constitution is totally different that we did it. Now during British time also the law was different, but now we are in the independent India and now we have different other sections of law. It is often believed that British colonialists who introduced the rule of law in India, historians have disputed this claim on several grounds, two of which include the first that colonial law was arbitrary and the second the Indian nationalists played in the prominent role of the development of legal sphere in the British India. So this is how the trial of the government has seen the law. Now यहाँ पे आपको एक फाइटिंग दिख रहा है जहां पे आपको समझ में आता है कि दिस वाज द केस आई थिंक व्हिच हैपेंड इन जलियांवाला बाग मैसेकर. Okay, so where General Dyer openly fired uh, you know ammunitions, सारे चीजों को फायर किया एंड द इनोसेंट पीपल देयर हु वर इनटू अ मीटिंग, वो सारे मिलके मीटिंग कर रहे थे. दे वर हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख एंड मेनी अदर रिलीजन पीपल टुगेदर दे डाइड. ओके, सो दिस वाज द सिचुएशन. उसके बाद लॉ हमारा काफी ज्यादा चेंज होने लगा with the constitution. यहाँ पे with the adoption of the constitution, this document served a foundation on which our representative began making laws for our country. As soon as our India become independent, our India became freedom, the law of our country changed. Every year our representative passed several law as well as revised existing ones. In this book we will see the Hindu session law amendment, the Muslim law. The laws are totally different, but if you are a common laws are always same, like the traffic rules and laws, the criminal laws. Some laws are different, but there are different law also in Hindu and Muslim session. Okay, so similarly new law has been enacted and control the pollution and provided employment. How do you come to think purpose of this law is necessary? You will read more about the next session. यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स से कि आपको समझ में आएगा कैसे लॉ चेंज होता है. हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, न्यू लॉ आता कैसे, बनता कैसे, जो नए नए लॉज हमारे कंट्री में ऐड होता जा रहा है वो बनता कैसे है. द पार्लियामेंट हैज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज. There are many ways through which this takes place. It is often different groups in the society that raise the need of the particular law. An important role of the parliament is to be sensitive of the problems faced by the people. Let us read the following story to understand how the issue of domestic violence have brought an attention to the parliament and the process adopted to issue new law. डोमेस्टिक वायलेंस, घर में किए हुए जो अहिंसा और घर में किए हुए जो अत्याचार होता है, डोमेस्टिक लॉ, ये कैसे आया. पहले डोमेस्टिक केसेस के लिए या फिर डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कोई भी ऐसे केसेस नहीं होते थे, लेकिन बाद में जाके ये डोमेस्टिक केस के लिए बहुत बड़ा इशू हुआ और फिर ये एक लॉ बन चुका. कैसे बन चुका वही हम आज देखने वाले हैं. नाउ domestic violence, you can read it from it. Domestic violence refers to the injury or harm or threat of injury or harm caused by an adult male, usually the husband, against his wife. Injury may be caused physically, beating up a woman, or emotionally abusing her. The abuse
of the woman can also include verbal, sexual, and economic abuse. The Protection of a Woman from Domestic Violence Act 2005 extend the understanding of domestic to include all women, those who live or have lived together in a shared household with a male member who is प्रिपेयरिंग द लॉ. मतलब इसका मतलब है डोमेस्टिक वायलेंस. आपको आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे घर पे किए हुए जो वायलेंस होते हैं, स्पेशली जो मेल मेंबर होता है घर का, वो अपने वाइफ या फिर अदर फीमेल मेंबर इन द हाउस उसको फिजिकली अब्यूज करना या फिर मेंटली टॉर्चर करना, इमोशनली उसको टर्मोइल करना, ये सारी जो चीजें होती है ये एक किस्म का डोमेस्टिक वायलेंस है. So the protection of the woman का protection, now it could be many type of, it could be economically, it could be verbally, it could be sexually. So ये सारे जो abuses जो चीजें हैं जो हमारे साथ या फिर करोड़ों करोड़ों वुमेन के साथ और करोड़ों करोड़ों महिलाओं के साथ ये जो अब्यूज हो रहा है, ये अब्यूज चल रहा है, बहुत सारे जो हैं वो बोलने से कतराते हैं, बोलने से डरते, क्योंकि अगर किसी को बोलते हैं तो उनको वो चीजों का सामना दोबारा करना पड़ता था. ठीक है, कि अगर उन्होंने किसी को कंप्लेन किया कि यस मेरे हस्बैंड ने मुझे आज बहुत मारा है, या फिर मेरे घर के जो एक मेल मेंबर ने मुझे बहुत मारा पीटा है, उसकी वजह से मुझे बहुत चोट लगा है, या फिर फिजिकली और मेंटली आई एम वेरी मच इनटू अ सैड सिचुएशन, वो अगर किसी से शेयर भी करते, किसी को बोलते या फिर कंप्लेन करते, तो उनके साथ ये चीजें और ज्यादा बढ़ जाती, दुगना ट्रीटमेंट होता. लेकिन राइट टू एक्ट से लेके ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो हम चीज देख रहे हैं कि वुमेन की सेफ्टी, सबसे इंपॉर्टेंट वुमेन की सेफ्टी. नाउ इफ वी गो आउटसाइड देयर इज अ लॉट ऑफ इशू ऑफ वुमेन सेफ्टी. बाहर जाते तो वुमेन सेफ्टी होता है, लेकिन घर पे भी क्या हम सेफ हैं? क्या घर पे हमें उतनी ही सेफ्टी मिलती है? अगर नहीं मिलती है तो ये सब डोमेस्टिक के खिलाफ, डोमेस्टिकेशन के खिलाफ ये जो वायलेंस हुआ, इसके एक अलग सा लॉ बन गया. नाउ ये एक सिचुएशन है, एक छोटा सा केस स्टडी है. यहाँ पे बोलती है शाजिया, यू रेड टुडेज न्यूज़पेपर, इजंट इट ग्रेट डे फॉर वुमेन. सो यहाँ पे बोलती है कि इजंट इट ग्रेट डे फॉर वुमेन, नॉट जस्ट वुमेन, वायलेंस फ्री होम्स विद will benefit everyone. Kusum has taken such a long time to get away the law passed. In fact, it began establishing the need of new law. तो उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है, वुमेन के लिए आज बहुत बड़ी बात है. कुसुम एंड शाजिया वर्क टुगेदर इन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन. दे रिमेंबर द जर्नी हाउ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट गॉट पास. इन लोगों ने सारे जो है वुमेन के खिलाफ लड़ाई करते हैं और कैसे धीरे धीरे ये लॉ पास हुआ है. A typical day in their office, 1991 की बात कर रहे हैं ये. I need advice. My husband beats me up. I haven't told anyone so far. I feel ashamed. I can't go on like this anymore. But I have now here to go. एक बहुत पहले की एक सिचुएशन है जो ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि एक महिला उसके पास आई थी और उसने ऑफिस में कंप्लेन करने के लिए बोला था कि मेरे हस्बैंड मुझे रोज मारते हैं, लेकिन मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं है. बताने में मुझे शर्म आती थी, लेकिन आज और नहीं, मैं और सह नहीं कर पाऊंगा. I am being ill treated by my son and daughter-in-law. They verbally abuse me. I have no access my bar. I have no access to my bank accounts. They may even throw me out. दूसरी महिलाएं आती है, थोड़ी एजेड महिलाएं आती है, तो आके बोलते हैं कि मेरे जो डॉटर है और मेरे सन इन लॉ मेरे से बहुत मेरे माई सन एंड माई डॉटर इन लॉ ट्रीट्स मी वेरी बैड. मुझे घर पे बहुत तकलीफ देती हैं और इनफैक्ट मेरे पास कोई पैसा भी नहीं है, मेरे बैंक अकाउंट्स का पूरा सब कुछ उनके पास है, तो हम क्या करें? So, I do not want to go to the police. I just want to stop the violence. ये जो महिला है जिसके साथ जो रोज मारपीट पीटा जाता है, वो कहती है कि मैं पुलिस के पास जाना नहीं चाहती, बट हाँ मेरे साथ घर पे जो रोज अत्याचार हो रहा है उसको मैं बंद कराना चाहती हूँ. जो बुढ़ी औरत है वो कहती है कि मैं भी I just don't want to thrown out of the house I'm living. मैं अपने घर से निकलना नहीं चाहती, बस मुझे घर चाहिए मुझे रहने के लिए. Unfortunately, the existing law is criminal and does not offer this option. ये जो सारी चीजें हैं ये क्रिमिनल लॉ का ऑप्शन है.
ठीक है। तो ये महिलाएं कहती है जो यहाँ पे काम करती है, बोलते हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है अभी। Through, throughout the 1990s, the need for the new laws was raised in different forums. We have heard testimonies of several women. We have seen the women want protection against being beaten. The right to continue living is shared household and often temporary relief. We need a new civil law to address this issue. उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ये एक क्रिमिनल केस है, जो हमारे साथ ऐसा कर रहा है, अगर वो क्रिमिनल केस है तो ठीक है, हमारे लिए सिविल लॉ के कुछ एक इशू बना दीजिए, कोई एक अलग लॉ बनाइए जो हमें प्रोटेक्शन मिल सके। सो फाइनली 1990s तक कुछ भी नहीं था, लेकिन जब 1990 हुआ, इन 1999 लॉयर्स collective, a group of lawyers, law students, and activists, after nationwide consultation, took the lead in drafting a domestic violence prevention and protection bill. This draft and widely circulated. सारे लोग मिलके, बहुत इंपॉर्टेंट लॉयर्स, स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ लॉ स्टूडेंट्स, सारे मिलके एक नया लॉ इंट्रोड्यूस किया, जो एक आपको कह सकते हो ये सिविल एंड सिविल एंड क्रिमिनल लॉ के बीचों बीच आता है, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं जो ऐसा एक डिफरेंट लॉ आया, प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन। The definition of the domestic violence should include physical, economic, sexual and verbal emotional abuse. जब कोई क्रिमिनल केस होता है, कभी आप किसी को मारते हो, पीटते हो और वो इंसान मर जाता है, तो वो क्रिमिनल केस हो जाता है, बिकॉज यू आर एक्ट ऑफ क्रिमिनल। लेकिन आप किसी से पैसे छीन लेते हो, उसका बैंकरप्ट कर देते हो और उसका पैसे छीन के भाग जाते हो, तो वो क्रिमिनल में नहीं आता है, वो आ जाता है सिविल में। तो वुमेन का ऐसा कंडीशन था कि वो रोज उनको डोमेस्टिक वायलेंस से गुजरना पड़ता था, कभी उसको पैसे नहीं मिलते थे, कभी उसको खाना नहीं मिलता था, कभी उससे मारा पीटा जाता था, या फिर जो इंडिपेंडेंट वुमेन जो होते थे उनसे पैसे छीन लिया जाता था। तो ये कौन से केस में आएगा? नाइदर इट इज क्रिमिनल और नाइदर इट इज सिविल। तो इसीलिए ये सोच हुआ कि ये हर एक जैसा होगा, ये एक डोमेस्टिक वायलेंस केस इज डिफरेंट एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। A law should come over any woman living in the shared domestic space. They should be protected from being evicted from the shared household. What about monetary relief? अब उसके बाद ये हो गया कि ठीक है, अगर किसी महिला को प्रॉब्लम होती है अपने घर से, उसके घर में सही माहौल नहीं है रहने का, if she is not safe, then she can go back to her maternal house or she can live alone. लेकिन what about the monetary terms? वो क्या कमाएंगे अगर वो हाउसवाइफ है, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है? तो यहाँ पे बिल का नया रिवाइज्ड वर्जन पास हुआ। मीटिंग्स एंड हेल्प विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, द मूवमेंट वेंट टू अ न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस इट इन द पार्लियामेंट सून। पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ। आपको बताया गया था पहले ही चैप्टर में, अगर कोई बिल पास होना होता है, कोई नया डिस्कशन होता है, पार्लियामेंट में डिस्कस होता है, अनटिल एंड अनलेस वो बिल पास होता है, तब जाके हमारा वो लॉ बन जाता है। Several women organization, National Commission of the Women, made submission of the Parliamentary Standing Committee, esteemed member of the Parliament Standing Committee. The present bill must be charged. We do not agree with the definition of domestic violence being proposed. The law need to provide temporary custody to the children. So, the law first recognized a woman's right to violence-free home and provides comprehensive definition of women violence. What is the new law? This is a civil law aimed at providing a relief to millions of women, including wives, mothers, daughters, sisters affected by the violence of their home. तो ये लॉ पास हुआ। उसके बाद क्या? द बिल हैज नन ऑफ व्हाट वी से सजेस्टिंग। इन्हें ये बिल सही नहीं लगा। ये 2002 की बात है। फिर फाइनली ये जो बिल आया, इसमें सारी चीजें इंक्लूड हुए। सबको प्रोवाइड, नॉट ओनली वाइफ, वुमेन लिविंग इन अ हाउस, उनसे वायलेंस फ्री प्लेस प्रोवाइड होगा। एंड ये भी बताया गया है, द लॉ इज वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप। इट इज बिकॉज रिकॉग्नाइज द राइट टू वुमेन लिव इन द शेयर हाउस होल्ड। वुमेन कैन गेट प्रोटेक्शन ऑर्डर अगेंस्ट एनी further violence. Women can get monetary relief, meet their expenses including medical cost.
Now being another long journey, yes, now the government has to ensure that the law implemented and enforced. अभी जाके हुआ, why this an important law? ये बहुत important क्यों है? ये महिलाओं के लिए बहुत ही important law बन गया है. अब कहीं पे भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है, इफ इट इज नॉट फिजिकल ऑल्सो, अगर मेंटली भी कोई आपको टॉर्चर करता है घर पे, या आपको लगता है कि आप यू कैन गो टू द पुलिस एंड कंप्लेन दैट मेरे साथ मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है. एंड if you don't want to stay with the house, you are ready to leave the house. बाद में आपको पुलिस कस्टडी भी मिलेगा, पुलिस आके आपको प्रोटेक्शन भी देंगे, और उसके साथ साथ आपको पैसे भी मिलेगा आपके घर वालों से कि आप जहां पे रह रहे हो वहां पे सुरक्षित रहो, और आपके घर के खर्चे के लिए भी आपको पैसे मिलेगा. दिस आर ऑल द थिंग्स दैट आर प्रोवाइडेड टू वुमेन. Okay, so this is what we have studied till now. So we are going to discuss the same thing tomorrow again. Okay, till then, just go through the chapter and have a nice day.